Good morning, students. Today we will discuss a new topic that is ambiguous grammar. That is ambiguous grammar. So the first question is, what is ambiguous grammar? So a grammar G, generally हम लोग ग्रामर को G से डिनोट करते हैं. So grammar G is said to be ambiguous if it generates more than one parse tree for the sentence of languages. For the sentence of languages, we already know that for creating the parse tree we have two methods. One is leftmost derivation and the other one is RMD, that is rightmost derivation. Okay, so आप आइधर LMD को फॉलो करते हुए अगर किसी पार्टिकुलर ग्रामर G के लिए more than one parse tree available होते हैं, then that grammar is known as ambiguous grammar. So either you follow LMD or you follow RMD. By following any one method, either LMD or RMD, if you get more than one parse tree, then that grammar is a ambiguous grammar. Suppose we have one set of productions rule, that is E tends to E plus E slash E tends to E star E slash ब्रैकेट ई स्लैश आई डी. ठीक है, इस पार्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्शंस रूल के लिए हमें क्या जनरेट करना है? इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी स्ट्रिंग के लिए हमें जनरेट करना है पार्स ट्री. एंड इफ by following either LMD or RMD, if we can able to generate more than one parse tree, in that case we will say that the grammar is this. Grammar is a ambiguous grammar. So we will start by following the one method, that is LMD. You can also follow the RMD, but now I am following LMD method. So for deriving this string id plus id star id, we use this productions rule. We use this productions rule, and with the help of this productions rule, we can derive this particular string. So suppose in a previous class, I have already said that whenever the set of productions rules are given, we always start with the start symbol. So here the grammar symbols E is the start symbol. So we take E tends to E plus E. We take E tends to E plus E. Leftmost derivation, that means the element which is in leftmost side is in form of non-terminal, then that non-terminal is a suitable candidate for the replacement. For the replacement in a given string, you have seen that the first string I want to be a id. So here also for this first E is replaced by id. So we have one productions E tends to id, and this E is replaced by id. This E is replaced by id. Again the remaining E is here, that we write as same as. Then next one is, since हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है id प्लस आई डी स्टार आई डी. सो आई डी तो हमें मिल गया है. अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है? एक ई बचा हुआ है, और अभी हमें क्या फाइंड लाना है? दो आईडी लाना है. और ये दो आईडी कैसे आएगा? ई को ही रिप्लेस करने से आएगा. दैट मीन्स अब हमारे पास ऑप्शंस तो ई से रिलेटेड बहुत सारे हैं. एक ऑप्शंस ये है, एक ऑप्शंस ये है, एक ऑप्शंस ये है, और एक ऑप्शंस ये है. अगर हम इसको 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें, इसको अगर हम 3 मान लें, और इसको हम 4 मान लें, तो जो लास्ट का ई है, ये जो सेकंड ई है, इसको रिप्लेस करने के लिए बताइए क्या हम फोर्थ नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं? दैट मीन्स ई टेंड्स टू आई डी. तो आपका जवाब होगा नहीं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम इस वाले ई को अगर हम आईडी से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी गेट ओनली आईडी प्लस आईडी. बट हमारे क्वेश्चंस में क्या है कि आपको स्ट्रिंग वैसा फाइंड आउट करना है
जो कि ID प्लस ID स्टार ID के फॉर्म में हो, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर हुआ कि हम 4 नंबर इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेदर वी अप्लाई 3 नंबर इक्वेशंस, योर आंसर इज अगेन, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग्स में कहीं पे भी ब्रैकेट्स का यूज नहीं हुआ है। अगर हम ये 3rd नंबर इक्वेशंस यूज करेंगे देन इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। सो अगेन हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन 3 भी सुटेबल नहीं है यूज करने के लिए। अगेन क्या हम फर्स्ट नंबर इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, यूज तो कर सकते हैं, और उस केस में हमारे आईडी प्लस 3 आईडी भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जो ऑपरेटर है वो हमें ऑपरेटर क्या मिलेगा, आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। दैट मीन्स जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको भी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचा, आपके पास ऑप्शंस केवल एक ही बचा, ई टेंड्स टू ई स्टार ई से अगर रिप्लेस करेंगे तभी हम जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगेन दिस ई इज रिप्लेस्ड बाय ई स्टार ई, ई स्टार ई, इस ई को हमने ई स्टार ई से रिप्लेस किया है, और इसी को राइट साइड में हम लोग लिख दिए हैं ई टेंड्स टू ई स्टार ई। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप we can easily form our parse tree. So next leftmost element what is, this is the leftmost element। again आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सो हमें क्या नेक्स्ट एलिमेंट्स लाना है, आईडी लाना है, और अगर हम फोर्थ के अलावा 1, 2 और थर्ड को यूज करेंगे तो वो हमें आईडी नहीं देगा, वो हमें आईडी नहीं देगा। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ई टेंड्स टू आईडी। सो यहाँ पे हमने आईडी पुट किया, रिमेनिंग जो, और इसको शो करने के लिए ई टेंड्स टू आईडी हमने मेंशन कर दिया। जो रिमेनिंग ई है इसको भी हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर फर्स्ट से करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, अगर सेकंड से करेंगे तो वो भी होगा, वो भी फिजिबल नहीं है, अगर थर्ड से करते हैं तो वो भी फिजिबल नहीं है। सो अगेन आपके पास ऑप्शंस एक ही हैं कि आप फोर्थ नंबर ई टेंड्स टू आईडी से ही इसको रिप्लेस करें। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। अब ये देखिए, जब कभी भी हम पार्स ट्री बनाते हैं तो ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट एलिमेंट। सो रूट एलिमेंट क्या था, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, देन क्या किससे हम लोग रिप्लेस किए, ई टेंड्स टू आईडी, फिर हम लोग ई को किससे रिप्लेस किए, ई स्टार ई, फिर ई को किससे रिप्लेस किए, आईडी, और अगेन ई को किससे रिप्लेस किए, आईडी। अगर इसको हम एक सीक्वेंस फॉर्म में यूज करें तो उस तरह से आपका ये पार्स ट्री बनेगा। देखिए फर्स्ट हमने क्या यूज किया था, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, सो यहाँ पे ई प्लस ई, देन फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हमने आईडी से रिप्लेस किया था, सो यहाँ पे हमने आईडी कर दिया। जो नेक्स्ट एलिमेंट ई था इसको हमने कौन से ऑप्शन से रिप्लेस किया था, इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस किया है, दैट मीन्स ई टेंड्स टू ई स्टार ई। अगेन this is the leftmost element, so this e is replaced by id and this is the remaining e that is finally replaced by id, and we get the particular string that is id plus id star id. So this is the one parse tree when we are following lmd for the particular string. Okay, अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि वेदर द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। सो अगेन अगर हम फर्स्ट वाले केस में किससे हम एलएमडी स्टार्ट किए थे, ई टेंड्स टू ई प्लस ई से। अब अभी हम नेक्स्ट एक मेथड, सेम ही मेथड अप्लाई करते हैं एलएमडी को, और हम जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है उसको ई टेंड्स टू ई स्टार ई से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि ई टेंड्स टू ई स्टार ई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है, ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है। सो इस ई को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ई प्लस ई से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ साइड में राइट हैंड साइड में नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। देन अगेन अब हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या हो गया है, ये ई हो गया। अभी इस ई को हम लोग आईडी से रिप्लेस किए हैं, सो ई टेंड्स टू आईडी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। फिर जो सेकेंड ई बचा उस सेकेंड ई को हम लोग क्या किससे रिप्लेस किया है, आईडी से रिप्लेस किया है, सो अगेन ई टेंड्स टू आईडी हमने कर लिया। जो ये थर्ड ई बचा उसको भी हम लोग ई टेंड्स टू आईडी से रिप्लेस किया है, तो ये हम लोग आईडी से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब फिर क्या है, ये जो भी हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ई टेंड्स टू ई स्टार ई, देन ई टेंड्स टू ई प्लस ई,
फाइनली ई टेंड्स टू आईडी, फिर आईडी और फिर आईडी। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर हम अपने पार्स ट्री जनरेट करते हैं तो देखिए ये फॉर्म होगा ई टेंड्स टू ई स्टार ई, ई टेंड्स टू ई स्टार ई। अगेन ई, इस लेफ्ट मोस्ट ई को हम लोग ई प्लस ई से रिप्लेस किए हैं, ई प्लस ई से रिप्लेस किए हैं। ठीक है, देन ये लेफ्ट मोस्ट अगेन हुआ, इसको हमने आईडी से रिप्लेस, इसको हमने आईडी से रिप्लेस किया, फिर इस ई को भी हमने आईडी से रिप्लेस किया और इस ई को भी फाइनली हम लोग आईडी से रिप्लेस किया। दैट मीन्स अगर आपके पास स्ट्रिंग है आईडी, आईडी प्लस आईडी, आईडी स्टार आईडी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स को अगर गिवन प्रोडक्शन रूल के हेल्प से अगर हम एलएमडी मेथड्स को यूज करते हुए डिराइव कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो पार्स ट्री ये बना और जो दूसरा पार्स ट्री वो ये बना, और हम देख रहे हैं कि सेम ही स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स ट्री बन रहा है। और अगर ये केस अवेलेबल होता है तो हम बोलेंगे कि जो गिवन ग्रामर है वो क्या है, आपका एम्बिगुअस ग्रामर है। जो गिवन ग्रामर है वो क्या है, आपका एम्बिगुअस ग्रामर है। और ये कंप्यूटर साइंस में कभी भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद आपको मोर देन वन पाथ अवेलेबल हो। यू हैव टू फॉलो ओनली वन पाथ। सो इन दिस केस हम कह सकते हैं कि जो ये ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर है। ओके, सो फॉर टुडे